In previous lecture, I discussed about the second quantization and second quantization technique, how we do second quantization of any field. किसी भी फील्ड का सेकंड क्वांटाइजेशन किस प्रकार करना है, उसके लिए सबसे पहले हम साई और पाई को एज एन ऑपरेटर्स ट्रीट करते हैं और उनके लिए हम कम्यूटेशन रिलेशंस जिस प्रकार हमने डिफाइन किए थे वो मान के चलते हैं। उन कम्यूटेशन रिलेशंस को लेते हुए हम एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं और हैमिल्टोनियन डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी इत्यादि को इन ऑपरेटर्स ए और ए डैगर की टर्म में लिखा जाता है। आज हम रियल केजी फील्ड के लिए सेकंड क्वांटाइजेशन देखेंगे, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ रियल केजी फील्ड। तो फॉर दिस first of all we have to choose a suitable Lagrangian density for real Kelvin-Gordon field. As I already discussed, the Lagrangian density for real KG field is given by 1 over 2c square del psi over del t whole square minus 1 over 2 del psi whole square minus 1 by 2 m0 square psi square. In SI unit, you can leave c square from here, then Lagrangian density will be curly L equal to 1 by 2 del psi over del t whole square minus 1 by 2 del psi square minus 1 by 2 m0 स्क्वायर साई स्क्वायर। और जैसा हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि इस लैग्रेंजियन डेंसिटी से अगर आप पाई निकालेंगे तो यह साई डॉट ओवर सी स्क्वायर और एसआई यूनिट में साई डॉट मिलता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन डेंसिटी मिलती है वह करली एच इक्वल टू 1 बाई 2 पाई स्क्वायर प्लस डेल साई स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी साई स्क्वायर प्राप्त होती है। ये डेरिवेशंस हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सेकंड क्वांटाइजेशन के लिए हम साई और पाई को फील्ड ऑपरेटर की तरह से यूज करेंगे और रियल केजी फील्ड के लिए साई डैकर इक्वल टू साई होता है, ये हम जानते हैं। इन फील्ड ऑपरेटर्स साई और पाई के लिए जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं उनको इक्वेशन नंबर 3 की तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी कि आपको ये कम्यूटेशन रिलेशंस स्टैंडर्ड कम्यूटेशन रिलेशन की तरह यूज करने हैं, इन विच you are seeing that the commutation relation of psi and pi, this is equal to IH cross del x minus x dash, and psi and psi dot is also equivalent to IH cross del psi del x minus x dash. Remaining all commutation relations are 0 here. So these are the commutation relations which we have defined for the second quantization of real KG field. These are the commutation relations and it is nothing but it is the procedure of second quantization.
As we already know that the Kg equation is a second order differential equation and having solutions in two parts, psi x equal to psi plus x plus psi minus x. Psi x is equivalent to dqk ak fkx plus a decker k fk star x. This is the solution of Kg equation in Fourier transformations, where fkx is equivalent to 1 over square root of 2 pi q 2 omega q omega k into exponential I k dot x minus omega kt. And similarly fk star x, this is equal to 1 over square root of 2 pi whole q 2 omega k exponential minus I k dot x minus omega t. Here 2 pi whole q is nothing but it is the volume in which system is included. Now from this you can find out the value of pi, which is equal to psi dot, means you have to take the differentiation of this equation with respect to time, and which will give you minus omega k outside as this, and the value of psi dash will be equivalent to dqk I omega k minus fk ak plus fk star a decker k. This is simple mathematics. And similarly we can find out the value of del psi. For this you have to differentiate the value of psi with respect to x, and which will give you equation number 7b dqk integration dqk ik fk ak minus fk star a decker k. Now we have to solve some standard integrations. The first integration is fkx fk dash x dqx. On using the value of fkx and fk dash x from equation 6a and 6b, you will have this term, and after solving this you can take out these terms from outside to the integration sign. 1 upon 2 pi whole cube to square root of omega k dash exponential minus I omega k plus omega k dash into t integration of exponential I k plus k dash into x dqx. And this term, this whole term is nothing but it is the delta function, and it is equivalent to del q k plus k dash. It is non-zero if k equal to minus k dash, then omega k dash equal to omega minus k, or there is no difference in between omega k and omega minus k, both are equal. So the integration, this is integration fkx fk dash x dqx is equivalent to exponential minus 2i omega kt over 2 omega k del q k plus k dash. Similarly एक बार हम fk dash स्टार यहाँ स्टार लगाकर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और जिस तरह से हमने पहले वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया था उसी टेक्निक को यूज करते हुए यदि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमें 2 ओमेगा के डेल क्यू के माइनस के डैश मिलेगी. डेल क्यू के माइनस के डैश इज नॉन जीरो फॉर के इक्वल टू के डैश, एंड
0 for k is not equal to k dash. And in third integration आप एफ के पर स्टार लगा लीजिए, इसको नॉन स्टार छोड़ दीजिए और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए. दिस विल गिव यू 1/2 ओमेगा के डेल क्यू के माइनस के डैश. एंड फाइनली द फोर्थ इंटीग्रेशन व्हेन you are having star on fk and fk dash both. If you solve this, then you will get exponential 2i omega kt over 2 omega k del q k plus k dash. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिन इंटीग्रेशन में एक एफ के पर स्टार है उसका सॉल्यूशन 1/2 ओमेगा के डेल क्यू के माइनस के डैश टाइप का मिल रहा है, जैसे 8a और 8b में मिल रहा है. जबकि जिनमें दोनों पे स्टार है या दोनों पे स्टार नहीं है वो इंटीग्रेशंस या तो एक्सपोनेंशियल -2i ओमेगा के टी ओवर 2 ओमेगा के डेल क्यू के प्लस के डैश, और ये वाला इंटीग्रेशन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप माइनस साइन आपके पास नहीं है, बाकी यह इंटीग्रेशन 8a की तरह ही है. मीन्स इंटीग्रेशन फर्स्ट और फोर्थ लगभग एक से है. जो डिफरेंस है वो आपके सामने है. 8a में आपके पास माइनस साइन आ रहा है एक्सपोनेंशियल में, और 8d में आपके पास माइनस साइन नहीं है. सो यू कैन रिमेंबर the value of this integration. There is no need to solve the value in examination. If you can remember, then you can directly write the value of integration. मैंने इन इंटीग्रेशंस को यहाँ कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है और आपको ये PDF नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं. अब हम जो नेक्स्ट 4 इंटीग्रेशंस लेंगे उनमें एक बार एफ के और साई के जो इंटीग्रेशंस हैं उनको लेंगे. पहला इंटीग्रेशन मैंने एफ के स्टार साई एक्स डी क्यू एक्स लिया है, और जिस तरह से वो इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे उसी तरह से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें. मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे. तो दिस विल गिव यू 1/2 ओमेगा के ए के प्लस ए डेकर माइनस के एक्सपोनेंशियल 2i ओमेगा के टी. और एक बार यहाँ से स्टार साइन हटा दें तब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ के की जगह माइनस के आ जाएगा. ये एक्सपोनेंशियल 2i ओमेगा के टी जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल -2i ओमेगा के टी हो जाएगा. अब जो यहाँ ए डेकर माइनस के था ये सिर्फ ए डेकर के रह जाएगा. तो इस तरह से आप सिमिलरिटी से इन इंटीग्रेशंस को लिख सकते हैं. तो हमने एक बार एफ के स्टार एक्स साई एक्स डी क्यू एक्स को सॉल्व किया है, और उसके बाद एफ के एक्स साई एक्स डी क्यू एक्स को सॉल्व किया है. तो इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू हम सॉल्व करके इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं. इसी तरह से हमने एफ के एक्स पाई एक्स सॉल्व किया, और एक बार एफ के स्टार एक्स पाई एक्स डी क्यू एक्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है. इंटीग्रेशन मेथड वही है जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इंटीग्रेशन के लिए यूज किए थे, और उन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 9C और 9D मिल गए. इस प्रकार हमने 8 इंटीग्रेशंस लिए थे, और उन 8 इंटीग्रेशंस से हमें वैल्यूज इक्वेशन नंबर 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C और 9D की टर्म में मिल गई है. ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करके एक बार जरूर देख लीजिएगा. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर in terms of field operators psi and pi. So for this purpose, multiplying equation number 9a by omega k and 9d by iota, and then adding these both, you have the value of ak in terms of psi x and pi x as given in this equation 10e. fk, this is equal to integration of fk star x omega k psi x plus I pi x dqx. And similarly,
a decker k, this is equivalent to f k omega k psi x. Here you are having minus sin I pi x dqx. अगर आप a k की वैल्यू निकाल लें इस तरह से मल्टीप्लाई करके, तो आप a decker k की वैल्यू डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. स्टार जहाँ है वहाँ से स्टार हटा दीजिए और जहाँ प्लस साइन है वहाँ माइनस साइन लगा दीजिए. दिस इज द डिफरेंस ओनली विच यू आर seeing here in equation number 10a and 10b. So you are having now the value of ak and a decker k in terms of psi and pi operators. अब हमें जो सेकेंड क्वांटाइजेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग करना है वो ए के और ए डेकर के डैश का कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करना है. ए के की वैल्यू आपके पास 10 ही में है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, और ए डेकर के की वैल्यू आपके पास 10 बी में है, ये वैल्यूज आप पुट कर दें और फिर इन्हें सॉल्व करें. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने यहाँ लग रखे हैं. और जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 3 में डिफाइन किया था कि सिमिलर टाइप ऑफ कम्यूटेशन रिलेशंस, जैसे यू आर हैविंग साई एक्स डैश हियर इन दिस ब्रैकेट, तो दिस विल बी इक्वल टू 0. सिमिलरली पाई एक्स और पाई एक्स डैश का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो भी 0 के बराबर होगा. जबकि ये जो इंटीग्रेशंस हैं साई एक्स पाई एक्स डैश एंड पाई एक्स आई एक्स डैश, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू आयोटा डेल क्यू एक्स माइनस एक्स डैश. ये इंटीग्रेशन हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. तो इन इंटीग्रेशंस को रख के और अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा के प्लस ओमेगा के डैश डी क्यू एक्स इंटीग्रेशन डी क्यू एक्स एफ के स्टार एक्स एफ के डैश एक्स. और ये जो वैल्यू है दिस इंटीग्रेशन जो आप इक्वेशन नंबर आई थिंक 8c में या 8b में निकाल चुके हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/2 ओमेगा के डेल क्यू के माइनस के डैश. तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देंगे देन यू विल हैव द कम्यूटेशन रिलेशन ए डेकर के डैश इज इक्विवेलेंट टू डेल के डैश या डेल क्यू के डैश, वॉट एवर यू लाइक यू कैन राइट. तो यहाँ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आप डेल क्यू लिखें या डेल लिखें, जो आप चाहें वो लिखें. तो ये इंटीग्रेशन डेल क्यू के कोमा के डैश मिलेगा. एंड फॉर के इक्वल टू के डैश दिस कम्यूटेशन रिलेशन विल बी इक्विवेलेंट टू 1. एंड फॉर के इज नॉट इक्वल टू के डैश दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0. सो we find out that the commutation relation of AK and A decker K dash is equivalent to del Q K dash. Or similarly we can prove that the commutation relation of AK and AK dash this is equivalent to 0 and A decker K dash this is also equivalent to 0. So इस तरह से हमने फील्ड ऑपरेटर्स को के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस मान के और उन फील्ड ऑपरेटर्स की टर्म में एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर को लिखकर उन एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस को फाइंड आउट कर लिया है. यानी कि हम रियल केजी फील्ड का सेकंड क्वांटाइजेशन इस प्रकार कर चुके हैं. यदि सेकंड क्वांटाइजेशन तक की बात आती है तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है. और यदि क्वेश्चन में आपको हैमिल्टोनियन को भी इन टर्म्स ऑफ ए के एंड ए डेकर के लिखना हो तब हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो अब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. नाउ टू एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन एंड एनालिसिस ऑपरेटर्स. तो एज वी नो एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ curly h dqx and this is equivalent to 1/2 integration of pi square plus del psi whole square plus mu square psi square dqx. Now on using the value of pi square and del psi square from the previous equations आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे. ध्यान रखें पाई और
पाई दो बार लिखना है, एक बार के यूज करें एफ के और दूसरी बार एफ के डैश यूज करें, तो ये एक पाई इसके इक्विवेलेंट होगा डी क्यू के माइनस एफ के एक्स ए के प्लस एफ के स्टार एक्स ए डेकर के, और यहाँ जो ओमेगा के बाहर आता था तो ये आई स्क्वायर ओमेगा के डैश हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जो पाई है उसके लिए वैल्यू रखेंगे, वो ये आएगी। फिर डेल साई की वैल्यू पुट करेंगे जो आप पहले से ही निकाल चुके हैं, तो डेल साई की वैल्यू ये रखें। उसके बाद यहाँ म्यू लिखा हो या m0 स्क्वायर लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप म्यू सिंबल भी यूज कर सकते हैं, m0 भी यूज कर सकते हैं। तो म्यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और फिर आप साई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये सारी वैल्यू पुट करके इन कम्यूटेशन रिलेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है, आपको दे भी रखा है नोट्स में, उसको आप सॉल्व करिए। तो दिस विल गिव यू 1/2 डी क्यू के डैश इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एक्स एफ के डैश एक्स ए के डैश माइनस ओमेगा के डैश माइनस के डॉट के डैश प्लस म्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एक्स एफ के डैश स्टार एक्स ए के डेकर के ओमेगा के डैश प्लस के डॉट के डैश प्लस म्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एक्स एफ के स्टार एक्स एफ के डैश एक्स ए डेकर के ओमेगा के डैश प्लस के डॉट के डैश प्लस म्यू स्क्वायर एंड सिमिलरली प्लस डी क्यू एक्स एफ के स्टार एक्स एफ के डैश स्टार एक्स ए डेकर के डैश माइनस ओमेगा के डैश माइनस के डॉट के डैश प्लस म्यू स्क्वायर। और फिर आप जो इंटीग्रेशंस हमने सॉल्व कर रखे हैं, ये इंटीग्रेशंस हम पूरे सॉल्व कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ के डैश एक्स डी क्यू एक्स, इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, और लास्ट में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप पुट कर दें जो मैंने यहाँ पुट कर रखी है। और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये सिंपल सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व करें तो आपके पास यह इक्वेशन मिल जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू के ए माइनस के एक्सपोनेंशियल माइनस 2i ओमेगा के प्लस ए डेकर माइनस के एक्सपोनेंशियल 2i ओमेगा के t1/2 ओमेगा के माइनस ओमेगा के स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस ए डेकर के प्लस ए डेकर के 1/2 ओमेगा के स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। और यहाँ ध्यान रखें कि ओमेगा के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, इसको पुट करें ओमेगा के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। देन आपके पास ये जो टर्म्स हैं जहाँ पे ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा के स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस ओमेगा के स्क्वायर रखा है, वो सारी टर्म्स जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएंगी और आपके पास इसे सबको सॉल्व करने के बाद h इक्वल टू 1/2 डी क्यू के ओमेगा के ए डेकर के प्लस ए डेकर के ये मिलेगा। और ए डेकर के इसको आप ए डेकर के प्लस 1 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और उसको लिखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो हैमिल्टोनियन h इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू के ओमेगा के ए डेकर के प्लस हाफ ये मिलेगा। इन एच क्रॉस यूनिट हैमिल्टोनियन h इक्वल टू डी क्यू के एच क्रॉस ओमेगा के ए डेकर के प्लस हाफ, ये आपको h मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एनिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर्स फॉर रियल केजी फील्ड। सिमिलरली आप मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम रियल केजी फील्ड के लिए पाई और साई की टर्म्स में इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एक्स पाई डेल एक्स पाई डेल साई। पाई और डेल साई की वैल्यू आप पुट करें और उसके बाद जैसे हमने एच को सॉल्व किया था उसी तरह से
यदि p की वैल्यू को p को सॉल्व करें, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें तो आपके पास सेम टर्म मिलेगी, सिर्फ यहाँ ओमेगा के की जगह आपको k मिलेगा। तो मोमेंटम p विल बी इक्विवेलेंट टू डी क्यू के ए डेकर के प्लस हाफ ये मिलेगा। इन एच क्रॉस यूनिट यू कैन राइट मोमेंटम p इक्वल टू डी क्यू के इंटीग्रेशन ऑफ एच क्रॉस के ए डेकर के प्लस हाफ, ये आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन फील्ड्स के लिए, रियल केजी फील्ड्स के लिए आप मोमेंटम और हैमिल्टोनियन दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। तो वैक्यूम, जैसे वैक्यूम स्टेट की बात करें तो जैसा मैंने पहले डिफाइन किया था कि वैक्यूम स्टेट वो स्टेट है जहाँ कोई पार्टिकल मौजूद नहीं हो, देयर इज नो पार्टिकल। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन गिव राइज टू द एनर्जी। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द 0 point एनर्जी, देन फॉर वैक्यूम स्टेट द नंबर ऑफ पार्टिकल would be equal to 0. इट मीन्स आप जैसा आप जानते हैं कि नंबर ऑपरेटर ए डेकर ए से डिफाइन किया जाता है, तो ए डेकर ए इसका मान 0 होना चाहिए वैक्यूम स्टेट के लिए। और वैक्यूम स्टेट के लिए इसका मान 0 अगर आपको मिलता है तो वह स्टेट 0 होगी। मीन्स स्टेट जिसमें कोई पार्टिकल मौजूद ना हो वैक्यूम स्टेट कहलाती है। तो हम यदि स्पेस पर, कंप्लीट स्पेस पर आप वैक्यूम स्टेट